next, the way of expressing या method of expressing the concentration, that is your strength. अब strength का क्या मतलब होता है बच्चे? Strength of a solution को हम कैसे define कर सकते हैं कि हमारे पास कितना mass है solute का, उसको हमने कितने liters में dissolve करना है. जब हमने परसेंटेज किया था बच्चे, परसेंटेज में हमने मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन लिया था. In case of your strength, we are going to take mass of the solute which is dissolved in given volume of the solution. Mass of the solute will be taken in grams and volume of the solution जो है that would be taken in your liters or your decimeter cube. So that is called as your strength. So strength को हम define कर सकते हैं that it is defined as the mass of the solute in grams dissolved per liter of the solution, that is called as your strength of the solution. अब ये जो strength of the solution हमारे पास है, this was the second way of expressing the concentration of the solution. The third method for determining or expressing the concentration of the solution, that is called as your molarity. Molarity जो है बच्चे हम उसको कैपिटल M के साथ डोनेट करते हैं. So कैपिटल M molarity होती क्या है? It is defined as number of moles. You have to remember this, it is number of the moles of the solute which is dissolved per liter of the solution. कि कितने moles आपने solute के लिए उसको कितने volume solution में आप dissolve कर रहे हो. So हमारे पास molarity, that is capital M, which is equals to moles of the solute dissolved divided by volume of the solution which is taken in liter. अब number of the moles को हम कैसे लिख सकते हैं? That is the weight dissolved divided by the molecular mass. इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? Mass of the solute divided by molar mass of the solute. Volume of the solution in liters उसको हमने as such ही रख दिया, that is the volume of the solution which is taken in liters. I'll repeat this once again. We have the molarity of the solution. Molarity को हम capital M के साथ डोनेट करते हैं. उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? That is number of the moles of the solute divided by volume of the solution which is taken in liters. This is important कि हमने volume लेना है. लेना किस चीज़ का? solution का, liters में हमने लेना है. तो हमारे पास जो molarity है that is mass of solute in grams divided by molar mass of the solute. वो क्या हमारे पास आ रहा है? That is number of the moles of solute dissolved divided by, ये सेम चीज़ आपके पास आ रही है, that is the volume of solution in liters. Other way of writing this is ये जो mass of solute in grams divided by जो हमने लिया था, that is volume of solution in liters, इसको हम बच्चे क्या लिख सकते हैं? That is also written as the strength. So इस चीज़ को, that is the mass divided by volume, that is written as the strength of the solution जो भी हमने पीछे पढ़ा है, divided by molar mass of the solute. So the molarity can be expressed either in the form of moles of the solute dissolved per liter of the solution, or it can be expressed in the form of the strength of the solution in grams divided by the molar mass of the solute. नेक्स्ट हमारे पास बच्चे जो है दैट इज एज आई टोल्ड यू इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. और इसमें हमारे पास सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव 0.5 मोलर ऑफ H2SO4. 0.5 मोलर H2SO4 का क्या मतलब है कि 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 दैट इज प्रेजेंट पर लिटर ऑफ द सोल्यूशन. इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? दैट इज रेड एज 0.5 मोलर. नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास आती है या नेक्स्ट वे जो आती है दैट इज कॉल्ड एज योर मोलालिटी. मोलालिटी को बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से. अब मोलालिटी क्या होती है? यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया था, ऊपर हमने लिया था मोल्स ऑफ द सोल्यूट. यहाँ मोलालिटी में बच्चे नीचे आपके पास वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा? दैट इज योर मास ऑफ द सॉल्वेंट. जो हमारा डिफरेंस आता है दैट इज मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स. दिस इज द फर्स्ट केस जहाँ पे बच्चे हम वॉल्यूम नहीं लेके चल रहे हैं, हम क्या लेके चल रहे हैं? दैट इज योर मास ऑफ योर सॉल्वेंट इन ग्राम्स. सो मोलालिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट मोलालिटी इज डिफाइंड एज moles of the solute, this is moles of the solute dissolved in 1000 grams of the solvent. 1000 grams की जगह पे sometimes books में 1 kg of the solvent भी लिखा हो सकता है, because हमें पता है 1 kg जो होती है that is equals to 1000 grams. So molality किसके equal है? That is moles of the solute dissolved divided by mass of the solvent in grams multiplied by 1000. 1000 क्यों कर रहे हैं? Because 1 kg जो होती है बच्चे that is equals to your 1000 grams. So उसके बेसिस पे हमने लिख दिया that is moles of the solute dissolved divided by mass of the solvent in grams. So उसके बाद बच्चे हम इसको into 1000 किया था, तो इसको instead of writing it as grams हम इसको kg में भी कर सकते हैं. So that is equals to moles of the solute dissolved divided by the mass of solvent in kgs. So that is another way of representing the molality, that is represented by small m. So molality जो होती है you can write it in this form also. molality में अब ये moles of solute आ रहे हैं, जैसे हमने ऊपर किया था moles of solute क्या होता है? moles कैसे निकाल सकते हैं? number of moles, that is the weight dissolved divided by molecular mass. यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, that is the mass of solute
dissolved per 1000 gram of solvent divided by molar mass of the solute, because always remember बच्चे जो number of moles है, number of moles को हम कैसे लिख सकते हैं, that is equals to weight dissolved divided by molecular mass. So that is what we've written here. इसको हम बच्चे किसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल m के साथ कर सकते हैं. सो स्मॉल m जो है फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर, दिस इज LaL, ऊपर वाला जो था MoLAR था. सपोज 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, उसका क्या मतलब है कि 0.1 मोल ऑफ योर सोल्यूट इट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट. आई एम रिपीटिंग, मोलारिटी में बच्चे आपने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स लिया था, यहाँ पे जो आप लेके चल रहे हो दैट इज योर सॉल्वेंट एंड दैट इज 1000 ग्राम्स ऑफ योर सॉल्वेंट. सो डोंट गेट कन्फ्यूज, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. सो ये आपने अच्छे से करके जाना है कि मोलारिटी में आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हो लीटर्स में, एंड मोलारिटी में बच्चे जो आप लेके चलते हो दैट इज 1000 ग्राम्स ऑफ योर सॉल्वेंट. सो इसको बच्चे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 0.1 मोलर और 0.1 MoLAL, इट इज LaL. नेक्स्ट हमारे पास आती है दैट इज योर नॉर्मेलिटी. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. तो नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या होती है कि नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंसी. अब नई चीज़ आ रही है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, दैट इज नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड ईदर इन द वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स या डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने ग्राम इक्विवेलेंस लिए. ग्राम इक्विवेलेंस किस चीज़ के लिए, सोल्यूट के लिए. उसको किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं. तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन अब क्या बन जाएगी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज योर ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व. दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ योर सोल्यूशन इन योर लीटर्स. अब इस केस में बच्चे जो हमारे पास मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन ग्राम्स आ रहा है, ये हमारे पास है कि ग्राम इक्विवेलेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंस इज मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. अब इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. अगर आपने निकालनी है दैट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी, बेसिसिटी, या हम क्या कह सकते हैं कि हमारी कितनी वैलेंसी आ रही है. सो इस केस में नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. ये ग्राम इक्विवेलेंस को हमने कैसे लिख दिया कि कितना मास डिसॉल्व्ड है, दैट इज ऑफ योर सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय कितनी उसकी एसिडिटी है, कितनी उसकी बेसिसिटी है, कितनी या कितनी उसके पास वैलेंसी है. बिकॉज अगर आपके पास एसिड या बेस नहीं होगा तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, आपने वैलेंसी लेनी है. नेक्स्ट थिंग, ये जो मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या था, इसको हमने स्ट्रेंथ लिखा था अभी पीछे. सो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम्स पर लीटर डिवाइडेड बाय दिस इक्विवेलेंट वेट. दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज इक्वल टू योर नॉर्मेलिटी. और इसको हमने कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट किया. तो नॉर्मेलिटी हम क्या कह सकते हैं, दैट वन नॉर्मल Na2CO3 सोल्यूशन दैट इज सोडियम कार्बोनेट, उसका क्या मतलब है कि सोल्यूशन में हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट. अब सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, दैट इज 53, दैट इज 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 48. तो वो हमारे पास ये वेट आ जाएगा, दैट इज 50. अब बच्चे इसलिए 53 क्यों आया, यहाँ पे देखो, यू हैव दिस Na2CO3, सोडियम का 23 होता है, 23 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48. सो दिस बिकम्स 8 2 10 16 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 8 9 एंड 10 106. क्योंकि अब बच्चे इसकी सोडियम कार्बोनेट है, दैट इज इक्वल्स टू Na2 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे आपके पास 2Na पॉजिटिव आ रहा है प्लस CO3 2 नेगेटिव. दैट मीन इसमें 2 हमारे पास इसकी वैलेंसी आ रही है. सो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 106 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 53. सो हमने क्या कर दिया कि वन नॉर्मल Na2CO3 सोल्यूशन का क्या मतलब है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 53 ग्राम्स ऑफ योर सोडियम कार्बोनेट. उसको हमने कितने में डिसॉल्व किया, पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. तो इसको हमने रीड कैसे करना है, दैट इज 1 नॉर्मल. नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आती है दैट इज योर मोल फ्रैक्शन. अब मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अभी हमने पीछे किया कि हमारा जो सोल्यूशन है बच्चे, उसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं, वन इज योर सोल्यूट विच इज इन लेस क्वांटिटी एंड दूसरा हमारे पास क्या आती है, दैट इज सॉल्वेंट विच इज इन मोर क्वांटिटी. तो अगर हमने मोल फ्रैक्शन करना है तो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने मोल्स हैं. सपोज मैंने सोल्यूट का फाइंड आउट करना है, तो कितने मोल सोल्यूट के हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स, दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अगर मैंने सॉल्वेंट का फाइंड आउट करना है तो हमने लिख देना कि नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स. टोटल नंबर ऑफ द मोल्स क्या आपके पास, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट. सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन.
टू बी ऑन द सेफर साइड हम सल्यूट को x2 लिख देते हैं एंड सॉल्वेंट को बच्चे x1 लिख सकते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सल्यूट की बात करेंगे तो ऊपर सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट. अगर हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, दैट इज नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट. सो दिस इज दैट. फॉर एग्जाम्पल नंबर को बच्चे हमने n1 n2 के साथ रिप्रेजेंट कर देना. अभी हमने पीछे अभी इस पूरे चैप्टर में जहाँ पे भी हम सल्यूट की बात करेंगे बच्चे उसको हमने नंबर 2 से रिप्रेजेंट करना है, और जहाँ पे भी बच्चे हमने सॉल्वेंट की बात करनी है उसको हमने नंबर 1 से रिप्रेजेंट करना है. सो अगर हमारे पास n2 मोल्स है सल्यूट के तो हम और n1 मोल्स है सॉल्वेंट के, तो मोल फ्रैक्शन को हम x के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 1 फॉर योर सॉल्वेंट एंड 2 हमारे पास जो हो जाएगा दैट इज फॉर योर सल्यूट. तो x2 जो हमारा सल्यूट का है वो क्या हो जाएगा, सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, एंड x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. अब बच्चे इन दोनों को ऐड कर दो. जब आप इनको ऐड करोगे तो x2 प्लस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. अब बच्चे देखो इन दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज n2 प्लस n1, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा n1 प्लस n2, दैट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली. सो दिस गोज ऑफ, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 1. सो अगर आपके पास बाइनरी सोल्यूशन है तो उस बाइनरी सोल्यूशन में x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज इक्वल्स टू 1. अब जरूरी नहीं है कि आपके पास बाइनरी सोल्यूशन ही होगा, आपके पास 3 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, 4 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स. तो उस केस के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 जितने भी बच्चे कंपोनेंट्स होंगे उसका सम टोटल जो होती है दैट इज इक्वल टू 1. रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो. देन बच्चे हमारे पास आती है मास फ्रैक्शन. जैसे बच्चे हमने मोल फ्रैक्शन किया वैसे ही हमारे पास आती है मास फ्रैक्शन. अब मास फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि कितना मास है. जैसे हमने यहाँ पे मोल्स लिए तो रादर देन टेकिंग मोल्स हम यहाँ पे लिख देंगे कि कितना मास हमारा सल्यूट का है डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज सल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास. सेम वे से अगर हमारे पास सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारे पास आ जाएगा. सो मास फ्रैक्शन ऑफ अ कॉम्पोनेंट इन अ सोल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द मास ऑफ द कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज वन थिंग. उसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट एंड द लास्ट इसमें जो आती है दैट इज ppm, दैट इज कॉल्ड एज योर पार्ट्स पर मिलियन. अब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 10 रेज़ टू पावर 6. तो जहाँ पे जैसे हमने परसेंटेज में किया था कि मास ऑफ द सल्यूट, दिस इज मास, हमने ऊपर किस चीज़ का लिया था, मास लिया था सल्यूट का, नीचे हमने क्या लिया था, दैट इज मास ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूशन अगर परसेंटेज थी तो 100 के साथ ऊपर सल्यूट आएगा बच्चे. दिस इज सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सल्यूशन इंटू 100 किया था परसेंटेज के लिए. तो पार्ट्स पर मिलियन में हम रादर देन मल्टीप्लाइंग इट बाय 100 हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 10 रेज़ टू पावर 6. सो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ सल्यूट विच इज प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज 10 रेज़ टू पावर 6. अब क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, स्ट्रेंथ कौन सा सबसे अच्छा है और क्यों है, विच इज द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. तो हमारा आंसर जो होता है दैट इज मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन जो होते हैं दे आर द बेस्ट मेथड्स. अब क्यों होता है, नॉर्मेलिटी में भी बच्चे आपने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया था, मोलारिटी में भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया था, स्ट्रेंथ में भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया था, बट मोलालिटी में, मोल फ्रैक्शन में, मास फ्रैक्शन में, मोलालिटी में आपने मास लिया था, मोल फ्रैक्शन में आई आपके पास मास जो है. सो मास जो होती है बच्चे कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, इट इज़ ओनली द वॉल्यूम विच चेंजेस विद टेम्परेचर. वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, बट मास जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता. सो जो चेंज नहीं होता क्वाइट ऑब्वियस है वो ज़्यादा अच्छा होगा. सो इस केस में भी हमारे पास ये है कि जो हमारे ये पहले तीन है, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ, ये जो हमारे पास हैं दे चेंजेस विद द टेम्परेचर, बट जो लेटर वाले हैं दैट इज योर मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड योर मास फ्रैक्शन दे डू नॉट चेंज विद द टेम्परेचर. इसीलिए बच्चे अगर हमने किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना है, अपनी सोल्यूशन को एक्सप्रेस करना है, द बेस्ट वे फॉर एक्सप्रेशन दैट इज द मोलालिटी, हम इसको प्रेफर करते हैं. उसके बाद बच्चे हमारे पास आती है कि 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है और दूसरी तरफ आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन है. दोनों में से कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा आती है, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है. अब एक है आपके पास कैपिटल एम दैट इज मोलारिटी, एक है आपके पास छोटा एम दैट इज योर मोलालिटी. तो हम कहते हैं कि हमारा 1 मोलर कैपिटल एम वाला जो होता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर 1 मोलर. क्योंकि अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो मोलारिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved per liter of the solution, और मोलालिटी क्या थी, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved per 1000 grams of the solvent. सो क्वाइट ऑब्वियस है, एक में हमने वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लिया, एक में हमने मास ऑफ द सॉल्वेंट लिया, और सॉल्वेंट का मास हमने किस में लिया, दैट इज इन 1000 ग्राम्स या 1 kg में हमने
हमने लिया है। तो इसकी वजह से हमारा जो 1 मोलर सोल्यूशन होता है बच्चे, उस 1 मोलर सोल्यूशन में 1 मोल सोल्यूट का प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे पास है दैट इज लेस देन 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ग्राम, बिकॉज उसमें 1 मोल तो आपका सोल्यूट का है, तो बाकी जो है वो आपका सॉल्वेंट है। दूसरी तरफ बच्चे हमने 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिए, 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिए, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट जो है वो एसोसिएटेड है, दैट विल बी एसोसिएटेड विद मोर देन 1 मोल ऑफ योर सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट भी प्रेजेंट है प्लस 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, सो वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी से दैट द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन, आई शुड नॉट से द बेस्ट वे, आई शुड से कि जो हमारे पास ग्रेटर कंसंट्रेशन है वो किस चीज की होती है, दैट इज विद योर 1 मोलर aqueous solution that has got the greater concentration as compared to that of your 1 molar aqueous solution. नेक्स्ट आर्टिकल जो बच्चे हमारे पास आती है दैट इज योर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हमारे पास क्या है कि फिजिकल स्टेट जो होती है आपके सोल्यूट की और सॉल्वेंट की, उसके बेसिस पे बच्चे हमारे पास 9 डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन बनते हैं। 9 डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास क्या है, आप पहले ये ले लो, सॉल्वेंट या तो आपका गैस हो सकता है, या सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो सकता है, या सॉल्वेंट आपके पास लिक्विड हो सकता है। अगर सॉल्वेंट गैस है तो दैट सोल्यूट कैन बी गैस लिक्विड सॉलिड, सेम वे से अगर आपका ये सॉलिड सॉल्वेंट है देन इट कैन बी गैस लिक्विड एंड सॉलिड, सेम इज द केस विद द लिक्विड। तो गैस इन गैस में आपके पास क्या है, दैट इज योर एयर हो सकता है, कुकिंग गैस हो सकता है, liquid is present in your gas, liquid less quantity में, that is your moisture in the air, solid is also present, that is solid solute है, गैस आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ये आपके पास स्मोक पार्टिकल्स आ जाएंगे। गैस एंड सॉलिड हमारे पास है कि सॉलिड ज़्यादा है बट उसमें गैसेस कम है, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल जो आप अपनी पिछले सेमेस्टर की क्लास में पढ़ के आए हो, हेटेरोजेनस कैटालिसिस जिसमें हमने किया था, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि हाइड्रोजन जो है दैट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम या प्लैटिनम। देन इज लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड में हमारे पास कौन सा आ रहा है, दैट इज योर मर्करी एंड योर सिल्वर, दैट इज कॉल्ड एज योर सिल्वर अमलगम। या सॉलिड एंड सॉलिड हमारे पास है, उसमें हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, दैट इज योर अलॉयज आ जाते हैं, दैट इज योर ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ये हमारे पास है। देन लास्ट 3 कैटेगरीज में जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट, अगर गैस उसमें हमारा सोल्यूट है तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें डिजॉल्व होती है, पेप्सी हो गया, कोक हो गया। लिक्विड एंड लिक्विड है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एंड वाटर ले लो, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सॉलिड एंड लिक्विड है तो इस केस में हमने जो सबसे पहली डेफिनेशन सोल्यूशन की पढ़ी थी दैट वाज योर सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन दैट इज बीन डिसॉल्व्ड इन योर वाटर, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सो इन वेरियस टाइप के सोल्यूशंस में जितने भी हमने किए, जो लास्ट वाले 3 बच्चे आपके पास आ रहे हैं जिसमें लिक्विड एज अ सॉल्वेंट आ रहा है, वो हमारे कॉमन है, वो फेमिलियर है, जो हमने इस चैप्टर में करना है बिकॉज हम सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं। सो वील बी टेकिंग अप दोज 3 इन डिटेल इन दिस चैप्टर। उस चीज़ को पढ़ने से पहले विल बी स्टार्टिंग द वेरियस आर्टिकल्स या वेरियस टर्म्स, जैसे केमिकल पोटेंशियल हो गया, एक्टिविटी हो गया, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। सो दैट वील डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। एनी डाउट्स देन लेट मी नो।